Sit हो जा भाई बैठ जा now. Today I shall teach another new lesson to my all viewers. Yes. Now, hello. I am Ashokananda. Welcome you all once again in the session. First of all, a very pleasant morning to all of you. Today we are going to learn about the new chapter whose name is the definition of noun. What is a noun? But before that, as usual, we are going to discuss about some of the word meanings which are here under imperative. Imperative. Adjective, English definition, very important, atyavashyak, Hindi. Second one, legacy, legacy, legacy. Now, money or property that is given by somebody when they die. वसीयत में प्राप्त धन. Lurk, L-U-R-K, lurk, lurk, walk, to wait somewhere, secretly, घात लगाकर बैठना. P-R-I-M-I-T-I-V-E, primitive, primitive adjective belonging to an early stage of humans, etc. आदिकालीन, Hindi meaning. Then next one word is recoil. Recoil. Recoil, verb to move our body quickly away. चौंक कर हटना. unique, unique adjective being the only one of its kind. अजूबा. Then deliverance, 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 noun, uncountable, the state of being rescued, बचाव. delivery, delivery, noun, countable or uncountable, both, the act of taking goods etc. to people. Vitran, H-U-M-A-N, human, human adjective, OBN only before noun, of or connected with people, manviya. H-U-M-A-N-E, humane, humane adjective showing kindness, sadachari. Then concentrate once again on these words. Imperative. Suppose we have urgent need of anything else, anything, then we can say it is imperative. I have imperative need of fire extinguishing. I have imperative need of money. Then legacy. Suppose my grandfather left a lot of wealth for me after his death. So what did I get? I get from him legacy. But I have not got such a kind of thing. Luck. Luck means you can see nowadays several types of criminals are waiting, especially shooters are waiting to shoot his target, to murder someone else, to harm, to do something illegal. So, what does that lurker do? Simply lurk, घात लगाकर बैठना. Primitive. We are very much familiar about primitive things, primitive attitude, which are prevalent around us. And then recoil.
when we are walking somewhere and suddenly we see a snake, then immediately we keep our leg back. So what do we do in this situation? We recoil, चौंक कर पीछे हटना. Unique, that is only one of its kind, only one of its kind, especially the Taj or any other similar thing, that is called unique. And deliverance soldiers are doing in case of flood or earthquake or battlefield, the act of deliverance or terrorist attack, you can see. Delivery postman do the work of delivery, keeping in his bag letters, money order, goods, parcels and so on to perform the act of delivery. And then human, adjective only before noun. Human nature, you can say anything that is connected with people. Human nature. Nowadays human nature is very much brutal, very much cruel. One man is even the enemy of the another man, not the enemy of the another creature. Human, showing kindness, this is necessary. If you have humanity, then you are human, and the life will be smooth and pleasant. Now focus on here. Today thought: be polite to be potent and persuasive. विनम्र बनिए, प्रबल और व्यापक बनने के लिए. देखिए, कोई भी चीज तभी शासन कर सकती है जब वो खुद अगले की बात को समझे और अपनी बात अगले तक पहुंचा सके. इसके लिए विनम्रता अनिवार्य है. जब आप अपनी बात अगले तक पहुंचाते हैं और दूर दूर तक पहुंचाते हैं और तब आप परवैशिव हो जाते हैं. और जब आप अपनी बात पहुंचाते हैं और अगले का भरोसा जीतते हैं तो आप पोटेंट हो जाते हैं. डोंट बी टिमिड टू लूज योर एग्जिस्टेंस. डरपोक मत बनिए अपने अस्तित्व को खोने के लिए. ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी डरपोक नहीं होना चाहिए. अगर हम लोग डरपोक हो जाएंगे तो लोग जो चाहे वो राय हमारे बारे में कायम कर सकते हैं और हम लोग अपने अस्तित्व से दूर भटक जाएंगे. Now, let us begin the chapter. Chapter 2, the noun संज्ञा. Look at the given sentences. निम्नलिखित वाक्यों को देखिए, दिए गए वाक्यों को देखिए. 1. अशोका इज सिंसियर. अशोका इज सिंसियर में देख सकते हैं आप, अशोका के नीचे अंडरलाइन किए गए हैं. अशोका आत्मीय है और इनके बगल में लिखा गया है NOPE. NOPE का क्या मतलब होता है? नेम ऑफ पर्सन. नेम ऑफ पर्सन. यहाँ P से पर्सन भी होते हैं, P से प्लेस भी होती है, इसलिए इनके बाद वाले वर्ड को स्मॉल लेटर से इंडिकेट करके P को पर्सन माना गया है और PL को प्लेस. सो अशोका इज सिंसियर. इट हियर I have underlined Ashoka. And what is Ashoka? Ashoka क्या है? Name of a person. एक व्यक्ति का नाम है. The monkey is black. बंदर काला है. यहाँ पे हम लोग देखें तो पाते हैं कि MONKEY monkey एक जानवर का नाम है जिसे अंडरलाइन कर दिया गया. इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है ब्रैकेट में NOA, नेम ऑफ animal. Now, सुशांत is from पटना. सुशांत पटना से है. NOPL, नेम ऑफ प्लेस. यहाँ पटना को अंडरलाइन किया गया है. पटना
एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है। She has a mobile phone. She has a mobile phone. यहाँ पर हम मोबाइल फोन को अंडरलाइन किए हैं। मोबाइल फोन NOT, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ थिंग। यहाँ देखिए NOT, नेम ऑफ थिंग। तो हम लोग कुछ इस ध्यान से देखें तो पाते हैं NOPE, नेम ऑफ पर्सन, प्लस NOA, नेम ऑफ एनिमल, प्लस NOPL, नेम ऑफ प्लेस, प्लस NOT, नेम ऑफ थिंग इज इक्वल टू N, यानी नाउन। अब इसी में देखेंगे तो NO, 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 NO सभी में कॉमन है। तो जो NO कॉमन है इसे हम बाहर निकाल लिए हैं, नेम ऑफ, और ब्रैकेट के अंदर डाल दिए हैं P पर्सन प्लस A एनिमल प्लस P PL प्लेस प्लस T थिंग इज ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू N। तो इस प्रकार से नाउन का डेफिनेशन क्या बन गया? The name of a person, an animal, place or thing is called a noun. एक व्यक्ति, जानवर, स्थान अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, ग्रामर एक साइंस है लैंग्वेज का। तो इसमें लैंग्वेज के बारे में आम आदमी से अधिक जानकारी दी जाती है। अगर हम किसी को कहते हैं एक गिलास पानी लाना, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इजी वे में दे देगा। लेकिन अगर कहते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ H2O, वो नहीं दे पाएगा। रीजन, क्योंकि H2O एक साइंटिफिक टर्म है। इसी प्रकार से किसी को हम बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, तो इमीडिएटली रिप्लाई करेगा माय नेम इज अशोकानंदा। लेकिन अगर उससे ये पूछा जाए व्हाट इज योर नाउन, तो पजल हो जाएगा फॉर अ व्हाइल, कुछ पल के लिए। कारण, क्योंकि वो पानी से परिचित है, लैंग्वेज के टर्म से परिचित है, ग्रामर के टर्म से परिचित नहीं है। जबकि नाउन नेम का ही ग्रामेटिकल टर्म है। जैसे H2O साइंटिफिक टर्म है वाटर का। तो इसका भी आंसर होना चाहिए माय नाउन इज अशोकानंदा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो नाउन होते हैं कोई भी, वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन PNOPE, फर्स्ट वन पार्टिकुलर, जैसे अशोकानंदा। जनरल, जैसे बॉय, टीचर। तो अब या मैन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, पार्टिकुलर नाउन और जनरल नाउन पर फोकस करके इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, PNOPE, अंबेडकर पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन है, हमारे संविधान के जनक। रामविलास पासवान पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन है। अब आज के समाज में जो एक बुराई फैली है, जो जात पात फैली है, अब उसके आधार पे देखा जाए तो पराया, अछूत या दलित, पराया, अछूत या दलित। तो ये दोनों में कॉमन फैक्टर है कि ये निम्न जाति से आते हैं, जो कि हमें लगता है कि रिजर्वेशन का अंत हो जाना चाहिए। ह्यूमन लाइफ इज डेड बेस्ट। यहाँ पे पराया कॉमन नाउन है। मिथुन, सलमान, सनी, आमिर, अक्षय, शाहरुख, अजय, अनिल,
ये सारे देखें तो ये सारे लोगों ने बहुत ही ज्यादा कामयाबी हासिल की है और अपने कैरियर में तरह तरह की चुनौतियों का सामना किया है, उत्थान पतन को देखा है और सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़े हैं। यानी ये सब क्या है? ये सारे हैं मेगालोमैनियक। तो मेगालोमैनियक मीन्स होता है महत्वोन्मादी, अपने महत्व को बढ़ाने के लिए जो दीवानगी की हद तक जा सके उसे कहते हैं मेगालोमैनियक, महत्वोन्मादी। सरल शब्दों में इसे महत्वाकांक्षी कर सकते हैं। तो ये हो गया पराया या मेगालोमैनियक जनरल नेम ऑफ पर्सन। और उसके बाद अंबेडकर, रामविलास, मिथुन, सनी, ये जो भी दिए हैं ये सारे पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन है। इसी प्रकार हम देखिए पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन के कुछ और एग्जांपल। शत्रुघ्न सिन्हा, नसीरुद्दीन शाह, मनोज वाजपेयी, ये सारे पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन है, लेकिन इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो है थेस्पियन नाट्य कलाकार। अब थेस्पियन नाट्य कलाकार ये कॉमन है सभी में, इससे किसी का भी बोध हो सकता है इनमें से। He is a thespian, या शत्रुघ्न सिन्हा इज अ थेस्पियन, नसीरुद्दीन शाह इज अ थेस्पियन, मनोज वाजपेयी इज अ थेस्पियन। थेस्पियन नाट्य कलाकार कॉमन। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। गणेश, हनुमान, भीम, ये सारे ऐसे व्यक्तियों के नाम हैं जो बहुत ज्यादा खाते हैं, गौमंड है ये सारे। तो ये जो भी गौमंड है उन्हें एक शब्द में कहें तो पेटू कहा जा सकता है, पेटू। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं नंबर 2 में, पार्टिकुलर नेम ऑफ एनिमल। तो पार्टिकुलर नेम ऑफ एनिमल में चलते हैं हम लोग। PNOA, पार्टिकुलर नेम ऑफ एनिमल, और यहां दिया गया है GNOA, जनरल नेम ऑफ एनिमल। अब कामधेनु हमारे हिंदू माइथोलॉजी में आता है, कामधेनु या नंदिनी, ये दोनों ही गाय के नाम है। खाऊ हिंदी गाय, काऊ हमारा जनरल नेम ऑफ एनिमल है और पार्टिकुलर नेम ऑफ एनिमल में कामधेनु, नंदिनी। उसी प्रकार सुग्रीव, अंगद, ये सारे वानर हैं। एप, तो एप हो गया हमारा जनरल नेम ऑफ एनिमल। गरुड़ा, काकभुशुंडी, ये दोनों ही पार्टिकुलर नेम ऑफ एनिमल बर्ड के अंतर्गत आते हैं, लेकिन बर्ड हो गया जनरल नेम ऑफ एनिमल। उसके बाद शेषनाग, कालिया, ये सब देखे तो पार्टिकुलर नेम ऑफ स्नेक के अंतर्गत आते हैं। पार्टिकुलर नेम ऑफ एनिमल कोबरा, नाग, इसमें से कोई भी हो सकते हैं। टॉमी, जिमी, ये दोनों ही पार्टिकुलर नेम ऑफ एनिमल स्पेशली डॉग के अंतर्गत रखे जा सकते हैं, लेकिन डॉग हो गया जनरल नेम ऑफ एनिमल। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। PNOPL, GNOPL, पार्टिकुलर नेम ऑफ एनिमल, जनरल नेम ऑफ एनिमल। अब यहां पर देखेंगे आप तो सॉरी, पार्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस PNOPL और GNOPL, जनरल नेम ऑफ प्लेस। अब चारवाड़ी रोड, पोस्टल पार्क, चिड़ियाघर, ये सब पटना के कुछ जनरल स्ट्रीट हैं जिनको मोहल्ला कर सकते हैं। तो मोहल्ला जनरल नेम ऑफ प्लेस में आ गए और पार्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस के अंतर्गत ये सारे हैं, लेकिन दोनों ही प्लेस ही हैं। अब बाजितपुर या कुमरकोल या फतेहपुर या चकजमाल की बात करें तो ये सब छोटे छोटे कस्बे हैं। तो हमारा कस्बा हैमलेट कस्बा जो है वो जनरल नेम ऑफ प्लेस है, लेकिन बाजितपुर, कुमरकोल या फतेहपुर या चकजमाल कहते हैं तो पार्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस हो जाते हैं, क्योंकि इनसे खास का बोध होता है और इससे किसी का भी बोध हो सकता है। अब इंडिया या अमेरिका कहें तो पार्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस की बात आती है, और GNOPL के अंतर्गत देखें तो सब कॉन्टिनेंट, यानी सब कॉन्टिनेंट में उपमहादेश। यहां लास्ट में हम लोग देखें 4th नंबर में PNOT, पार्टिकुलर नेम ऑफ थिंग, GNOT, जनरल नेम ऑफ थिंग। यहां पे समझने की कोशिश करेंगे आप कि रिलायंस, सैमसंग या माइक्रोमैक्स या नोकिया की बात करें तो ये सब
पार्टिकुलर नेम ऑफ मोबाइल है, लेकिन अगर सिर्फ मोबाइल की बात करें तो मोबाइल हमारा है जनरल नेम ऑफ थिंग। उसके बाद महिंद्रा, टोयोटा, फोर्ड या मारुति सुजुकी की बात करें तो ये सब पार्टिकुलर नेम ऑफ व्हीकल्स के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन कार की बात करें तो कार हमारा हो गया पार्टिकुलर नेम ऑफ कार, यहाँ पे जनरल नेम ऑफ कार में आता है। कार मीन्स कोई भी कार। उसके बाद नटराज, अप्सरा, लिंक, फैबर कैस्टल की बात करें तो ये सारे पार्टिकुलर नेम ऑफ पेंसिल के अंतर्गत आ जाएंगे। और पेंसिल की बात करें तो पेंशन का अर्थ होता है, पेंशन मीन्स जनरल नेम ऑफ थिंग, कि कोई भी पेंसिल। अजंता, मिलान, नवनीत, क्लासमेट, ये सारे को देखें तो ये पार्टिकुलर नेम ऑफ थिंग है और ये सारे क्या बनाते हैं, कॉपियां। तो अगर इनकी कॉपी की बात करें तो कॉपी कोई भी जनरल नेम ऑफ थिंग हो जाएगा। कंपोज्ड बाय अश्वनंदा फ्रॉम Teshe. Teshe stands for Devagiri Sharma English Heart. I think you have enjoyed the video. Thanks a lot. Please subscribe, like, comment and share. Don't forget. Have a nice day.